Welcome, my dear friends. Today, the topic is about the solubility of gases in liquids and Henry's law. What do you mean by the solubility of gases in liquids? It's basically the gases, dissolution of gas dissolution of gas in unit volume of liquid to form a saturated solution This is called as solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid simply refers to कितना गैस डिसॉल्व होगा in unit volume of liquid, फिर आपका saturated solution बनेगा. We call that solubility of gas in liquid. ये जो solubility है ये हम express करते हैं. This solubility of gas in liquid, this is expressed. Since we have so many units for expressing such a solubility, or we can say concentration, we have molarity, normality, formality, etc. And we are here expressing it in terms of mole fraction. So this is expressed in terms of mole fraction X. So we express solubility of gas in liquid by means of mole fraction. Now, what are the factors that can affect this solubility? Factors. Factor number one is nature of gas and liquid. Nature of gas and liquid. आपको पता होगा, we have a mnemonic that's called like dissolves like. Like dissolves like, which means polar will dissolve in polar while non-polar in non-polar. For example, N2O2 या H2 जो है, they are less soluble in water, less soluble in H2O than ammonia, than H2HCl, H2S, etc. This is because these gases जो है, they are polar and these are the non-polar gases. So they are less soluble, this is more soluble. Similarly, H2S and HCl, they are more soluble in water but less in alcohol. So if you change the solvent from water to alcohol, the solubility of these also decreases. So it changes. So this is how it gets affected by the nature of gas and the nature of liquid. This was the first factor. Factor number second, temperature. जो गैस की डिसोल्यूशन होती है, गैस प्लस सॉल्वेंट जो है, फिर ये सोल्यूशन बनाता है. इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब डेल्टा H इज नेगेटिव. सो डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सिंस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ जितना आप टेम्परेचर राइज करोगे उसका मतलब उतना उसका सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा. सो जितना आप टेम्परेचर राइज करेंगे, solubility will decrease, because for every exothermic reaction, if you increase the temperature, it goes backwards as per Leitch-Leiter's principle. So गैस सॉल्वेंट से बाहर आएगा, मतलब उसका solubility जो है उस लिक्विड में वो डिक्रीज हो जाएगी. फैक्टर नंबर नेक्स्ट इज प्रेशर. जितना आप प्रेशर राइज करेंगे,
above liquid surface, आपके पास ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर गैस है। जितना आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सो इफ यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ दैट गैस, मोर गैस विल डिजोल्व इन लिक्विड। सो जब डिसोल्यूशन ज्यादा हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, एस इंक्रीजेस। जितना आप प्रेशर गैस का इंक्रीज करेंगे अबव द लिक्विड सरफेस, उतना सॉल्युबिलिटी जो है गैस का वो ज्यादा हो जाएगा इन दैट लिक्विड। ये फैक्टर जो है, दिस इज स्टडीड बाय हेनरी। दिस फैक्टर इज स्टडीड बाय हेनरी। दिस इज स्टडीड बाय हेनरी। उसने एक लॉ दिया जिसका नाम है हेनरीज लॉ। They gave a law that's called Henry's law. So what is this law all about we shall be talking about? So पहली बात आपको ये पता चली कि हेनरी कहाँ से आया, हेनरी का जिक्र कहाँ से आया। हेनरी लॉ की ये आया, बेसिकली ही studied the effect of pressure on the solubility of gases in liquids. तो जितना प्रेशर राइज करेंगे उतना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। तो इसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस इट क्वांटिटेटिवली, हाउ मच प्रेशर you exert and how much gas is dissolved, quantitative analysis करने के बाद में इसने एक लॉ दिया जिसका नाम है हेनरीज लॉ। सो व्हाट इट स्टेट्स, वी शैल बी राइटिंग इट हियर। सो हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, I told you solubility कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, by means of mole fraction, that is mole fraction of gas and liquid, is directly proportional to the pressure of gas. We can say partial pressure of gas is directly proportional to the partial pressure of gas when gas and liquid are in equilibrium. This is the statement of Henry's law. So समझ के आया यहाँ से, आपके पास एक कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, इट कंटेन्स अ लिक्विड, आपके ऊपर इस पे गैस है, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और वी कैन से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो लिक्विड में हो जाएगी वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली ऑन व्हाट इज द प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड सरफेस। लेकिन तब आप ये डिफाइन करते हैं, स्टेट करते हैं, प्रोवाइडेड ये जो गैस है और ये जो लिक्विड है, दे मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। सो व्हेन द गैस एंड द लिक्विड अटेन इक्विलिब्रियम, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कितना गैस डिसॉल्व हुआ है लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड सरफेस व्हेन दिस लिक्विड एंड दिस गैस आर इन इक्विलिब्रियम। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस is directly proportional to pressure of gas, is directly proportional to the pressure of gas. This is the statement of Henry law. So mole fraction of gas, or we can say solubility of gas in liquid, ठीक, is directly proportional to the partial pressure of that gas when gas and liquid are in equilibrium. Or we can also write it like this, or mole fraction of gas, लेकिन ये किसमें डिसॉल्व हुआ है? लिक्विड में, इन लिक्विड, is equal to K times pressure of gas, partial pressure of gas, or we can write like this, pressure of gas will be equal to 1 by K times mole fraction of gas, or we can write like this, pressure of gas will be equal to KH times mole fraction of gas, where 1 by K is equal to KH, इसको नाम देते हैं हम हेनरी कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। This is called as Henry constant. This is
This is the equation of Henry's law. प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो बराबर होता है हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड. लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन गैस का डिसॉल्व हुआ है. दिस इज व्हाट्स कॉल्ड एज Henry law. So we can write here this is mole fraction of gas in a liquid. In liquid important है क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे कंटेनर होगा, फिर ये आपका लिक्विड होगा, ये गैस होगा. अगर यहाँ पे दो गैस है, सपोज वी हैव N2, सपोज वी हैव O2 आल्सो, सो यहाँ पे भी आपको एक मोल फ्रैक्शन निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2. बट इन गैसियस स्टेट वो ये मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, बिकॉज दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड. मतलब इसमें कितना डिसॉल्व हुआ है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन लिक्विड, दैट इज हियर इन हेनरी लॉ. एंड दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबो लिक्विड सरफेस, अबो लिक्विड सरफेस. यानी कि ऊपर जो है O2 का प्रेशर कितना है, फिर उसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया इन लिक्विड, दैट इज द रिलेशन. अब केज का है, केज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम लिखेंगे यहां. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केज. ये जो केज है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड. अगर आप गैस चेंज के, हर एक गैस के लिए अपना केज होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और अगर आप डिसॉल्व करेंगे इस डिफरेंट लिक्विड्स में तो उसका केएच वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड. इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर आल्सो. इट टेक्स द यूनिट्स ऑफ, इट टेक्स द यूनिट्स ऑफ प्रेशर. इट टेक्स द यूनिट्स ऑफ प्रेशर. कैसे, आप यहां देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, सो केएच टेक्स द यूनिट्स ऑफ प्रेशर. केएच टेक्स द यूनिट्स ऑफ प्रेशर. नेक्स्ट, मतलब इसका वैल्यू, इसका यूनिट होगा या तो एटमॉस्फेयर, या तो बार, या फिर किलो बार, या फिर पास्कल्स. मतलब व्हाट एवर आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर विल बी द यूनिट्स ऑफ केएच. नेक्स्ट, टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. जितना केएच ज्यादा, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा केएच ज्यादा होगा. So more the temperature, more will be the value of KH. So direct relation. Next is, जितना KH वैल्यू ज्यादा होगा, more KH. अगर KH वैल्यू ज्यादा होगा then solubility decrease होगी. क्यों? Because मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड वो डिक्रीज होता जाएगा. कैसे, आप ये देख सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन, मोल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज इक्वल टू केएच टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. अब देखिए केएच वहां पे रखिए आप, सो केएच विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. अब देखिए यहाँ जितना केएच वैल्यू ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा. इनवर्स रिलेशन है. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड लिक्विड जब कम होगा मतलब सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. सो KH पे सॉल्युबिलिटी डिपेंडेंट है. जितना KH वैल्यू ज्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी कम होगी, जितना KH वैल्यू ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा. वी कैन से इन अदर वर्ड्स, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा KH वैल्यू ज्यादा होगा. जब KH वैल्यू ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज बिकॉज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड इज डिक्रीजिंग. देयर इज एन इनवर्स रिलेशन फ्रॉम हेनरी लॉ. From Henry law, that is this. I hope you understand these factors. Now, how can you calculate KH? You simply plot a graph between pressure and mole fraction. आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रिलेशन से, अगर आपने मोल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से आप ये जो है ग्राफ डाल दिया, यहाँ पे हम डालेंगे ग्राफ. विल पुट द ग्राफ हियर. सो यहाँ पे हम डालेंगे ग्राफ. सो यू हैव फॉर एग्जांपल हियर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. दिस इज the mole fraction of gas in liquid. तो ये linear relation आएगी passing through origin. So this will be the graph, and इसका आप slope जो निकालेंगे slope, so tan theta will be equal to slope, that is equal to what, KH.
So slope directly gives you value of KH. So this is how you can find the value of KH at different temperatures and at difference of gases and difference of liquids. So you change the gas, you have the different value of K. You change the liquid also in which the gas is dissolved, you have the different value of K. So it takes the unit of pressure. It depends on temperature. It depends on temperature. You change the temperature, KH value changes. And once the KH value changes, the solubility will also change. What is the value of KH for some gases we have here? KH for some gases at 20 डिग्री सेल्सियस इन वाटर. हमारे पास है गैस, सपोज गैस यहाँ पे है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ये उनका KH वैल्यू है इन किलो बार. इट्स अप्रोक्सीमेटली 145. इट्स हियर 75. इट्स हियर 35. सो दीज आर द सम ऑफ द वैल्यूज. इससे हमें साफ पता चलता है कि O2 का जो KH वैल्यू है, सो KH वैल्यू फॉर O2 इज वेरी लेस. जब KH वैल्यू कम होता है तो अभी बताया, जब KH वैल्यू ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, जब KH वैल्यू कम होगा तो सॉल्युबिलिटी विल बी मोर. तो डिसोल्यूशन ऑफ हेंस सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इज मोर. इसका मतलब ये हुआ, जो आपके पास ये ऑक्सीजन है, इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड दिस इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल. दिस इज लेस सॉल्युबल. जितना KH वैल्यू कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जितना KH वैल्यू ज्यादा होगा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी. तो दिस इज एसेंशियली इनसॉल्युबल. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. I hope you understand this. Now, under what conditions Henry law is valid? Conditions under which Henry law is valid. Henry law is valid. Conditions under which Henry law is valid. दो conditions यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है. Number one condition is, जो आपका ये gases है, gases must behave ideally. They must behave ideally. Gas कब behave करता है ideally? जब pressure low होगा and temperature is high. When pressure is low, temperature is high, a gas behaves ideally. Number second is, gases जो होंगे should not undergo gases should not undergo any association or dissociation or compound formation in liquid. Compound formation in liquid. तब ये वैलिड नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेंगे N2, सो N2 जब आप डिजोल्व करेंगे वाटर में तो N2 ही रहेगा. इट रिमेन्स N2. सो यहाँ पे ओबे करेगा ये. अगर आप लेंगे फॉर एग्जाम्पल अमोनिया जब आप पानी में डालेंगे तो इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इट लीड्स टू कंपाउंड फॉर्मेशन. सो दिस गैस विल नॉट ओबे हेनरी लॉ. सिमिलरली आपके पास HCl है. HCl जब आप पानी में डालेंगे तो HCl टूट जाएगा, इट विल डिसोशिएट. जब ये टूट जाएगा तो बनेगा H प्लस एंड Cl माइनस. So it undergoes dissociation. This gas will also do not obey Henry law. Similarly, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पानी में डालेंगे आप डिसॉल्व करने के लिए, ये बनेगा कार्बोनिक एसिड. ये भी ओबे जो है हेनरी लॉ नहीं करेगा. हेनरी लॉ ओबे ना करने का मतलब ये है, हेनरी लॉ ओबे ना करने का मतलब ये है, जो इक्वेशन इसने दे दी है, इक्वेशन ये जो इसने दे दी हेनरी लॉ ने, दैट इज द pressure of gas, partial pressure of gas is equal to KH into mole fraction of gas, ये वैलिड नहीं है. That's called the invalidity of Henry law. ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी इन गैसेस के लिए जो कंपाउंड बनाते हैं या फिर जो डिसोशिएट होते हैं या फिर उनका जो है एसोसिएशन होता है. तो उनके लिए ये वो इक्वेशन जो है हेनरी लॉ की वो वैलिड नहीं है. You cannot find quantitatively how much gas is dissolved by how much pressure. You cannot find that quantitatively. हाँ, ऐसा पता लग सकता है जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे इसी गैस का डिसोल्यूशन तो हो जाएगा, ठीक, लेकिन you cannot get the value of mole fraction in liquid by increasing the given amount of pressure. मतलब वो इक्वेशन जो है वो वैलिड नहीं रहेगी.
सो ये हेनरी लॉ ओबे नहीं करेगा. Now, we shall be taking first of all certain problems, then we shall be proceeding further. So questions हम लेंगे. Question number one हम लेंगे. If N2 gas is bubbled through H2O, if N2 gas is bubbled through water at 293 K, find the moles of gas dissolved in 1 liter of H2O when nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. KH at 293 K दिया हुआ है कितना? That is 76.48 किलो बार. ये आपके लिए क्वेश्चन है. तो सोल्यूशन क्या है आपको पता है. आपको निकालना है मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. ठीक, मोल्स कैसे निकलेंगे? जब मोल फ्रैक्शन निकलेगा. मोल फ्रैक्शन और प्रेशर दिया हुआ है. ठीक, गैस का प्रेशर दिया हुआ है तो केएच भी दिया हुआ है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन. फ्रॉम दैट मोल फ्रैक्शन यू कैन गेट मोल्स. रिलेशन क्या है? एज पर हेनरी लॉ, प्रेशर ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू KH टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इन लिक्विड. ठीक, अब x आप निकालेंगे पहले. KH is given and P is given, so you can implies mole fraction of N2 gas in liquid इसके बराबर होगा pressure divided by KH. Pressure is 0.987 divided by KH is 76.48 into 10 to power 3. ये बार में दिया हुआ है, ये किलो बार में दिया हुआ है. That's why we have multiplied it by means of 10 to power 3 to convert it into bar. ये जब सॉल्व करेंगे आप, ये निकलेगा वैल्यू. The value has been found to be 1.3 into 10 to power minus 5. आप देख सकते हैं अब मोल फ्रैक्शन N2 का इन लिक्विड बहुत कम है. 1.3 into 10 to power minus 5. इसका मतलब यह मोल्स भी कम होंगे. जब मोल्स बहुत सारे कम होंगे इसका मतलब दिस इज नेग्लिजिबल. यू कैन हैव, इसके बदले हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर. That is equal to 1.3 into 10 to power minus 5. अब moles of N2 बहुत कम है क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो N2 का है that is very lesser, very very lesser. जब मोल फ्रैक्शन लेसर है तो मोल्स भी लेसर है, तो मोल्स कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू वाटर. सो वी कैन राइट हियर, सो n number of moles of N2 is lesser than number of moles of water. You can neglect number of moles in the denominator. So what you can find, the equation you obtain is number of moles of N2 divided by number of moles of water will be equal to 1.3 into 10 to power minus 5. So number of moles of N2 will be equal to 1.3 into 10 to power minus 5 into number of moles of H2O. That is equal to 1.3 into 10 to power minus 5 multiply moles is equal to mass by molecular mass. Mass divided by molecular mass. अब mass तो दिया है नहीं, but volume is given. Volume is equal to 1 liter. ठीक, डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? That's 1 ग्राम पर लीटर. तो देयरफॉर मास कितना निकलेगा? मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी, मींस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 1 into 1, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम. ठीक, तो 1 ग्राम आया तो आप लिख सकते हैं यहाँ मास 1 किलोग्राम, सॉरी kg, बिकॉज यहाँ पे लीटर आता है 1 kg पर लीटर. तो यहाँ पे भी 1 kg आएगा ये, बिकॉज इट्स इन लीटर्स, तो इट विल बी 1 किलोग्राम. तो 1 किलोग्राम मीन्स 1000, मास 1000 आएगा, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास आएगा 18, बिकॉज मास आया अब 1 kg मीन्स 1000 grams, molecular mass is 18. You multiply it, you will get the answer, that is 0.007 moles. यही आपको निकालना था. So you find the moles of N2 in liquid. यही क्वेश्चन था कि आप कैसे निकालेंगे moles of gas dissolved in 1 liter of water. अब हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास वाटर का वॉल्यूम दिया होगा उसका उतना मास भी होगा. सो 1 liter ऑफ वाटर मीन्स 1 kg ऑफ वाटर, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू 1.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज KH फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है एट 298 केल्विन इज 1.67 into 10 to power 8 pascals. Calculate mass of CO2 dissolved in 500 ml of soda, means soda water, at 2.5 atmosphere pressure. ठीक, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, आपको केएच दिया हुआ है, आपको निकालना है मास. मास कब निकलेगा? जब मोल्स निकलेंगे. मोल्स कब निकलेंगे? जब मोल फ्रैक्शन निकलेगा. सो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दैट इज N2. तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, उसी से आपको मोल्स निकलेंगे. जब मोल्स निकलेंगे उससे आपको मास निकलेगा. तो KH दिया हुआ है, तो यू कैन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, दैट इज प्रेशर बाय KH. प्रेशर इज 2.5, so 2.5 divided by KH. KH is 1.67 into 10 to power 8. लेकिन पास्कल है, we have to convert it into atmosphere, या आप एटमॉस्फेयर ही कर लीजिए कन्वर्ट इनटू पास्कल्स. सो एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? 10 to 5 पास्कल्स. एक एटमॉस्फेयर होता है 10 raised power 5 पास्कल्स. सो वी हैव मल्टीप्लाइड इट 10 to 5 पास्कल्स बिकॉज 1 atm इज इक्वल टू 1 into 10 to power 5 पास्कल्स. तो हमने 2.5 को मल्टीप्लाई किया 10 to power 5, ये बनेगा पास्कल, और ये भी पास्कल में ही है, तो यू आर गेटिंग मोल फ्रैक्शन. दैट इज इक्वल टू 1.5 into 10 to power -3. अब मोल फ्रैक्शन बहुत कम आया अगेन. सो जब मोल फ्रैक्शन बहुत कम आ गया, इसका मतलब मोल्स ऑफ N2 विल बी लेसर. सो यू कैन नेग्लेक्ट इन द डिनोमिनेटर इन द सेम वे. सो वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. यहाँ पे सोडा वाटर है, सोडा वाटर में इसमें CO2 भी थोड़ा सा है, लेकिन मोल फ्रैक्शन CO2 का बहुत कम होगा, बहुत कम जो है. सॉरी, यहाँ पे CO2 है, मैंने N2 लिखा. इट्स CO2 हियर, सॉरी, इट इज CO2 हियर. गैस इज CO2 नॉट N2 यहाँ पे. तो दैट इज इक्वल टू 1.5 into 10 to power -3. तो ये हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. मीन्स मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू 1.5 into 10 to power -3 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ वाटर. अब मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे आपको आप देख सकते हैं यहाँ. सो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू 1.5 into 10 to power -3 मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ वाटर. सो मोल्स इज मास बाय मॉलिक्यूलर मास. मास तो नहीं दिया, वॉल्यूम इज गिवन, बट आई टोल्ड यू राइट नाउ, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का, तब उसका मास भी वही होगा. मीन्स 500 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मीन्स 18. जब आप ये सॉल्व करेंगे, यू आर गेटिंग 0.0416. ये आपके मोल्स निकल गए. तो दिस इंप्लाइज मास ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास मीन्स 0.0416 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 44, which will be equal to 1.8 grams. This is how you calculate it. So first of all, you find mole fraction, and mole fraction बहुत कम आता है, तो you remove the mole fraction in the denominator of that gas, then multiply the mole fraction of water here. जितना volume दिया हुआ होगा water का, उसका उतना mass भी होगा, because density is equal to 1. So we take it 500 gram multiply divided by 18, that is mass by molecular mass, that's moles. मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, तो मोल्स निकल गए. आप मास भी निकाल सकते हैं, बिकॉज मोल इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू आर गेटिंग 1.8 grams. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस मोल फ्रैक्शन एंड द मास. एक और प्रॉब्लम हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हम लेंगे. KH for N2 is 1 into 10 to power 5 atmosphere at 298 Kelvin. आपको बताना है and the mole fraction of N2 in air. Mole fraction of N2 in air is 0.8. ये जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है N2 का, ये एयर में दिया हुआ है, नॉट इन लिक्विड. ये आपको ध्यान में रखना है. मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8. फाइंड द moles of N2 from air that dissolved
in 10 moles of water, 10 moles of water at 5 atm pressure, at 5 atm pressure. आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि कितना मोल्स ऑफ N2 डिजोल्व हुए हैं इन 10 मोल्स ऑफ वाटर में. मतलब आपको निकालना है मोल्स ऑफ N2 इन लिक्विड, दैट्स वाटर. लेकिन प्रेशर कितना दिया हुआ है N2 का, दैट्स 5 atm. प्रेशर कितना दिया हुआ है एयर का, टोटल एयर का प्रेशर 5 atm, ठीक. और मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है N2 का इन एयर, दैट्स 0.8. आप कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो एक्सप्रेशन है. एक है प्रेशर ऑफ गैस मींस प्रेशर ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू KH टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इन लिक्विड. अब मसला यह है कि KH तो दिया हुआ है नाइट्रोजन का, दैट इज दिस मच. प्रेशर ऑफ N2 गैस इज नॉट गिवन. इट इज द प्रेशर ऑफ, इट इज द टोटल प्रेशर बिकॉज N2 इज फ्रॉम एयर. सो आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी है, कितने मोल्स, 10 मोल्स, और यहां पे एयर है, दिस इज एयर. नाउ एयर का मेजर पार्ट है N2 और O2, ठीक. CO2 भी है, तो N2 और O2 हमारे पास है मेजर पार्ट. तो O2 N2 का मोल फ्रैक्शन कितना है एयर में, दैट इज 0.8. अब इसका कितना होगा, 0.2 होगा लाजमन. तो ये डिजोल्व होंगे, जब ये भी डिजोल्व होगा, ये भी डिजोल्व होगा, दोनों डिजोल्व होंगे. आपको निकालना है मोल्स ऑफ N2 इन लिक्विड. लेकिन ये जो मोल फ्रैक्शन है ये नहीं दिया हुआ है, दिस इज नॉट गिवन. बट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज गिवन इन गैसियस फेज, नॉट इन लिक्विड. सो ये आपको दिया नहीं हुआ, ये दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर. बट इसका जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है, दैट्स 5 atm. हमारे पास एक डाल्टन की रिलेशन है. ऑल्सो वी नो फ्रॉम Dalton's law, partial pressure of gas means N2 gas will be equal to mole fraction of that gas into total pressure, ठीक. अब आप निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर किसका, N2 गैस का. कैसे, मोल फ्रैक्शन तो दिया हुआ है N2 गैस का, बिकॉज दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इन गैसियस मिक्सचर, दैट 0.8. टोटल प्रेशर दिया हुआ है ऑलरेडी 5 atm, तो यू कैन कैलकुलेट. सो दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कितना है, दैट इज 0.8 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर कितना है एयर का, 5 atm, 5, that's equal to 4 atm. So what is the partial pressure of N2 now, 4 atm. Put the value here, you will get the mole fraction of gas in liquid, ठीक. So what you do is you put the value of pressure here, you will get the value of mole fraction in of N2 in liquid. So we have, so now pressure of N2 will be equal to mole fraction of N2 into KH. So this implies mole fraction of N2 in liquid will be equal to this divided by, that is 4 divided by KH means KH कितना दिया हुआ है, that is 1 into 10 to the power 5, 10 to the power 5, that is equal to 4 into 10 to the power minus 5, ठीक. अब मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, निकालना क्या है आपको निकालना है मोल्स. सो मोल फ्रैक्शन निकला तो मोल्स इजी निकलेंगे. सो जब मोल फ्रैक्शन बहुत कम है तो इसका वी कैन राइट इट, mole fraction of N2 will be equal to moles of N2 divided by total moles of N2 plus moles of oxygen plus moles of water. Because ये एयर है, एयर में O2 भी डिजोल्व होता है, N2 भी डिजोल्व होता है. सो इसमें मोल फ्रैक्शन O2 का भी, मोल्स ऑफ N2 भी होंगे, मोल्स ऑफ O2 भी होंगे, मोल्स ऑफ वाटर भी होंगे, टोटल मोल्स और मोल्स ऑफ N2 का आप निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन. सो यू हैव moles of N2 divided by total moles, that is the mole fraction of N2, that's equal to 4 into 10 to the power minus 5. अब मोल फ्रैक्शन बहुत कम है N2 का, मतलब ये कि moles of N2 भी कम होंगे, moles of O2 भी कम होंगे. You can neglect these two, so you can get moles of N2 divided by moles of H2O will be equal to 4 into 10 to the power minus 5. Moles of N2 will be equal to 4 into 10 to the power minus 5. Multiply moles of water को दिया हुआ है, that's 10 moles. So you can multiply it here 10, that will be equal to 4 into 10 to the power minus 4 number of moles of N2. So this is how you can calculate it. So ये आपको पहले ध्यान में रखना होता है कि what is given. ये जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था, ये this was in air, मतलब गैसियस मिक्सचर में, तब आपका ये रिलेशन इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक. और ये टोटल प्रेशर दिया हुआ था एंड आपको निकालना था एक्चुअली मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट N2 इन लिक्विड. सो इन लिक्विड में आपको हेनरी लॉ इस्तेमाल करना है और इन गैसियस मिक्सचर आपको क्या इस्तेमाल करना है, दैट इज द डाल्टन्स लॉ. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स. और इसमें जो है आपके अब
कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ हेनरी लॉ क्या है। नंबर 1 एग्जाम्पल है इन कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में आप प्रेशर, आपको CO2 डिजोल्व करना है कोल्ड ड्रिंक में, तो आप प्रेशर डाल के करते हैं वो, ताकि ज़्यादा गैस डिजोल्व होगा, हेनरी लॉ इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, इन डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग में डीकम्प्रेशन सिकनेस होता है, डीकम्प्रेशन सिकनेस मतलब जब डीप सी में जाना होता है किसी डाइवर को, वो सिलेंडर लगाता है पीछे, वो सिलेंडर पीछे लगाता है, उस सिलेंडर में वो डिजोल्व करता है, उसमें O2 भी होता है, N2 भी होता है और हीलियम भी होता है, या कुछ गैस होते हैं टू गिव यू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो उस तरीके से जो है आपको ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन जब आप नीचे जाते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, वहाँ पे दबाव ज़्यादा होता है, मतलब प्रेशर ज़्यादा, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो मोर गैस इज डिजोल्वड, आपके ब्लड में ज़्यादा गैस डिजोल्व होता है। जब आप ऊपर चले जाते हैं, वो गैस फिर बाहर निकलना चाहता है, उसकी वजह से जो है वेन्स में, आर्टरीज में बबल्स क्रिएट होते हैं उस नाइट्रोजन गैस की, तो दैट्स कॉल्ड एज डीकम्प्रेशन सिकनेस और बेंड्स, उसको बोलते हैं बेंड्स। ठीक, नेक्स्ट इज एनोक्सिया। एनोक्सिया इज बेसिकली मेंटल कंफ्यूजन। कब होता है? व्हेन यू गो टू ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड्स। व्हेन यू गो टू हाई ऑल्टीट्यूड्स, तो क्या होता है, ऊपर प्रेशर कम है। जब आप ऊपर जाते हैं बहुत ऑल्टीट्यूड में, तो ऊपर प्रेशर कम है। जब प्रेशर इज लो, देन डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी आल्सो लो। जब ब्लड में ऑक्सीजन कम पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो है आपका जो दिमाग में भी ऑक्सीजन कम रहता है, तो मेंटल कंफ्यूजन डेवलप होता है, टायर्डनेस होती है, दैट्स कॉल्ड एज एनोक्सिया। सो प्रेशर कम, ऑक्सीजन डिसोल्यूशन भी कम, दैट्स कॉल्ड हेनरी लॉ। और यहाँ पे जब आप नीचे जाते हैं डीप सी डाइविंग में नीचे जाते हैं, तो दबाव ज़्यादा होता है प्रेशर का, मतलब प्रेशर इज हाई, तो ये गैस ज़्यादा डिजोल्व होते हैं, मतलब वहाँ पे हेनरी लॉ अप्लाई होता है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, उसकी वजह से फिर उन गैस को बाहर निकलना होता है, तो दे लीड टू बबलिंग, दैट्स कॉल्ड बेंड्स। तो फंक्शन ऑफ लंग्स में भी ये इस्तेमाल होता है। जब ये ऑक्सीजन लंग्स में पहुँच जाता है, तो क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा होता है लंग्स में, तो मोर ऑक्सीजन इज डिजोल्व्ड इन ब्लड। जब ये सर्कुलेट होता है, फिर टिश्यूज़ में जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ये जब प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, तो ये रिलीज कर जाता है, इट गेट्स रिलीज देयर। तो दिस इज हाउ हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल in real life examples. So this was all about Henry Law. I hope you understand it. If you like my videos, please do not hesitate to share and subscribe my channel. Thank you very much.